we have somebody very, very special. Somebody very, very special who has come all the way from, what should I say? मेरे को नहीं बोलना चाहिए. I think मुझे उनको बुलाना चाहिए. मैंने उनको क्यों बुलाया ये रीजन मैं बता देता हूँ. कई बार वो बोलते हैं कि दिल के तार मिल जाते हैं. Sometimes we feel कि दिल के तार मिल जाते हैं. तो with Ajit and me, I think it was love at first sight. Okay, Ajit is here. Let me make him co-host and unmute him. Yeah, Ajit, you are a co-host now. You can unmute when I will invite you. Okay, fantastic. So Ajit और मेरे दिल के तार मिल गए. And हम ज्यादा मिलते नहीं है. We don't meet quite often. Actually बहुत साल हो गए हम मिले हुए. But हम फोन पे बातें करते रहते हैं. We know each other. What are we doing? And Ajit has been, in fact, one of my first any kind of great financial advisor, financial consultant, जो भी आप बोलेंगे. And we have come. He has come long way. Long way. Today अजीत रन्स, अजीत की अपनी कंपनी है और अजीत क्या करते हैं, कितने नंबर्स करते हैं, कितने कस्टमर्स हैं, वो हम बात करेंगे. और आज से करीबन 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ. वी मेट इन 2005 और 2005 में गुड़गांव में हमारी मुलाकात हुई. एंड सिंस देन इट इज बीन अ बॉन्ड विच इज आई थिंक गोइंग टू बी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. आप लोग उनसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे एंड में. डोंट वरी, आई विल गिव मॉडरेशन पहले. और आपको नोट्स बनाने, यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू लर्न थॉट प्रोसेस, रीड बिटवीन द लाइंस. क्या वो बोल रहे हैं, क्या उन्होंने प्रिपरेशन किया. यू हैव टू मेक नोट्स बिकॉज ये सेशन जो है ये आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा. इट विल नॉट कम अगेन. बिकॉज मैं आपको ग्राउंड से एक बंदा लाया हूं जो ग्राउंड से उठ के आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की कंपनी है उनकी. He has his own company of financial planning. And let me just not do much. And please, everybody say welcome, Ajit sir. Ajit sir, nahi, Ajit is fine. I guess he will not mind. Let's say everybody say welcome, Ajit, in the chat box. And let me invite him and give a very good discussion with you. And so that aap bahut kuch seekh paye. Let's welcome. Please, everybody say welcome. Everybody give your wishes. Fantastic. All right, let me stop sharing this. And here is Ajit. Hi. Hi, Yogendra. Hello, how are you? I will just pin you and I will pin myself too. And okay, Ajit, first of all, welcome for accepting this and thank you so much for joining us. As usual. Thank you. Thank you, Yogi. It's a great pleasure, right? I logged in about 10 minutes back and मैं सबको सुन पा रहा हूँ. I hope I can speak both Hindi and English. I first of all सबका स्वागत करता हूँ and thank you for inviting me rather to 1999. I can see nice people who are willing to learn and I am hearing for the last 10 minutes. I can see with the meticulous details that you are teaching them or imparting certain knowledge. It reminds me of something that was there 17, 18 years back in 2006, that in Gurgaon office. So yes, it's a great pleasure, Yogi. Tell me, what should I share today? देखो अजीत, हमारे पास जो लोग हैं वो 80-20% है. सो 80% हिंदी बोलने वाले हैं, 20% इंग्लिश बोलने वाले हैं. We have some of our South Indian friends also from Mr. Senthil, Mr. Brights, Mr. Matthews and Mr. Vijay Sarthi. तो बाकी लोग हिंदी में है तो इंग्लिश चलेगा. और मोस्टली लोग जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं और कुछ बहुत सबके सपने हैं. सब आप जैसा या मतलब आपसे भी आगे जाना चाहते हैं कि. तो पहले तो आप ये बताइए कि आजकल मतलब सीक्रेट्स कुछ खोलते हैं. पहले ये बताइए कि आप कितना कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, कितने एसेट अंडर मैनेजमेंट है और कंपनी का क्या नाम है, कुछ बताइए अपने बारे में. ओके, एक्चुअली हमने 2012 के अप्रैल में शुरू किया था एंड वी स्टार्टेड विद सम कंपनी कॉल्ड AU म्यूचुअल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. और पिछले 10 साल से लगातार इस कंपनी को हम बढ़ा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एंड वी आर मैनेजिंग क्लोजली अबाउट 450 crores of asset through mutual fund primarily. Fantastic. So, yes. Wow, great. Everybody say congratulations. Well done. This is fantastic. 450 crore, Ajit. Congratulations. Thank you, Yogi. And the number of clients would be close to 2,500. It would be maybe 2,600
2700, but I think last C number is 2500 numbers हैं. Lot of retail clients, lot of HNI, NRIs हैं, हैदराबाद में हैं, बैंगलोर, मुंबई में भी हैं. So it is spread across the geography in India and also some NRI destinations like US, Canada, Europe, part of Europe and Australia as well. तो इन जगहों पे हमारे clients हैं. Okay. Now let's go little deep. जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बनारस, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बनारस का लड़का, एयरफोर्स का लड़का जो एयरफोर्स में काम करता था गवर्नमेंट जॉब में, और वो आज एक अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंशियल प्लानिंग की कंपनी खोल के बैठे. इस स्टोरी के बारे में थोड़ा और बताइए, आपके मुंह से सुनने में बढ़िया लगेगा. कैसा लग रहा है आपको, हाउ दिस स्टोरी हैज बीन? See, actually, story is very fantastic, Yogi. There is no limit to what हम लोग grow कर सकते हैं, and it's all story is always in the making. Like आप story बना रहे होते हैं, and you feel like जहाँ कहीं भी है, अगर एक progressive mindset है, वो यही सोचता है कि ये story तो कुछ भी नहीं है, ये story तो आगे बढ़नी चाहिए और आगे. But yes, दोनों ही चीजें होनी चाहिए लाइफ में. एक तो एस्पायर करना कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, दूसरा रुक के रिफ्लेक्ट करना कि मैं कहाँ तक कितना ग्राउंड कवर कर चुका हूँ. अगर दोनों में बैलेंस नहीं है तो आई थिंक दिस इज नॉट फेयर टू द सक्सेस एंड टू द हार्ड वर्क दैट यू पुट इन. तो एयरफोर्स में मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था एंड आई हैड अ लाइकिंग. मैं शुरू से ही एडवाइस करता था लोगों को कि टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, व्हाट कुड बी इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे उनको सेव करना चाहिए. और उन दोनों लाइफ इंश्योरेंस के जो ATC वाला होता था, लाइफ इंश्योरेंस से कभी कभी लास्ट मिनट में कोई आता था, मुझसे पूछता था कि अभी क्या करना चाहिए जिससे मेरा टैक्स इस बार कम हो. And I was responsible for disbursement of salary to different people. तो मैं कुछ कुछ एडवाइस कर देता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था. लाइक उस समय के सीनियर्स, जब मैं यंगस्टर था बहुत, तो बोलते थे इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है लोगों को. बट आई डिराइव्ड माय जॉय इन शेयरिंग थिंग्स उस समय से ही. तो धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, और साथ ही साथ मैं ऑफिसर रैंक्स, इतने सीनियर रैंक्स नहीं थी, तो मुझे लगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ग्रो करने के लिए. तो मेरी लाइकिंग धीरे धीरे होते होते मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे, इट वाज लाइक आई वाज अपीयरिंग फॉर अ बिग इंटरव्यू. उस सीरियसनेस के साथ में जाके, उस समय भी याद है मुझे 2002-3 में. एंड व्हेन आई वाज काइंड ऑफ इनवाइटेड एंड एनरोल्ड एज अ कंसल्टेंट, जिसको आप एजेंट भी कह सकते हैं. तो आई यूज्ड टू टेल एवरीवन आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट. आई यूज्ड टू टेल दिस एज अ न्यूज, और वो बोल के मैं प्राइड फील करता था. तो वो वहीं से शुरू हो गया था कि मेरा काम या जो कुछ भी होने वाला था, मैंने कैरी किया इस चीज को, इवन व्हाइल आई वाज स्टिल पार्ट ऑफ एयरफोर्स. तो पार्ट टाइम से शुरू करते करते एंड मुझे धीरे धीरे लगा कि इसको आई विल मेक अ करियर ग्रेजुअली, एंड सही समय आया. उसके बाद से आई मेड इट अ फुल टाइम करियर. कैसे हुआ आई कैन टेल यू लेटर इन द प्रोग्राम टुडे. ये एयरफोर्स को छोड़ना तो बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा ना लाइफ का. आई रिमेम्बर एक्चुअली, मेरे को पूरा याद है, मुझे वो लेटर भी याद है, बट आई वांट टू हियर, दिस वाज अ बिग डिसीजन. एक स्मॉल टाउन बॉय का गवर्नमेंट जॉब छोड़ के फुल टाइम इसमें लगना. तो आज भी वो याद है क्या, मेमोरीज क्या, व्हाट ऑल वेंट थ्रू द माइंड डिसीजन मेकिंग में? बहुत कुछ है. पहले तो एज आई सेड कि बहुत सीनियर प्रोफाइल में नहीं था, एंड मेरा करियर मुझे ऐसा लगता था कि एयरफोर्स में लिमिटेड होगा. एंड आई वाज द फर्स्ट जनरेशन गाई. तो कई बार मैं दूसरों को देखता था जो सेकंड जनरेशन थे, तो उनकी लाइफ में थोड़ा अलग मजा था. ऐसा लगता था कि वो एक स्टेप आगे हैं, एंड आई थॉट कि मेरे बच्चे उस स्टेप में जाएंगे शायद. तो आई हैव टू लिव माई सेल्फ इन सी काइंड ऑफ प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, एंड मे बी माई सन व्हेन आई मैरिड, वो शायद उस जगह पे जाएंगे जहां पे कई कुछ लोगों को देखता था, जिनसे इंस्पायर होता था. बट देन लगा कि नहीं यार, लाइफ इज वन एंड आई विल डू इट. बच्चे तो करेंगे, बट मैं करूंगा, मैं ही करूंगा. एंड देन अपने आप को मैं तैयार करना शुरू किया. इसी बीच में दिल्ली मेरा ट्रांसफर आया, एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन बसेस. मुझे जिस तरीके से बस के कंडक्टर्स कभी कभी बोलते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था. मुझे लगता था कि दे आर ट्रीटिंग वेरी वेरी नॉर्मली. उनको हर किसी को अच्छा ट्रीट करना चाहिए, बट मुझे पसंद नहीं लग रहा था. मुझे लगा कि द लाइफ इज लीडिंग इन अ वेरी ऑर्डिनरी वे, इवन दो आई एम वर्किंग डिसेंटली, ठीक ठाक है, समाज में इज्जत भी हो रही है. बट मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे वहां नहीं लेके जा रही है जहां मैं शायद एस्पायर करना चाहता हूँ. और फिर मैं मेहनत करना शुरू किया. इट्स नॉट वन डे डिसीजन, योगी. मैं लगातार मेहनत करना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड. आई विल टेल यू सम स्टोरी. मेरी एक छुट्टी मुझे हुई थी एयरफोर्स से करीब 19-20 दिनों की. मैं बताऊंगा कहानी आपको. तो उस समय मैं वाइफ के नाम से एनरोल कर लिया था टू बिकम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल, जब मैं गुड़गांव या इधर आया था.
और जब छुट्टी गया तो मैं वाराणसी गया, लेकिन 1-2 दिन घर में मिलजुल के पेरेंट्स के बाद फिर मैं कहा कि नहीं, मैं पूरी छुट्टी बैठने वाला नहीं हूँ। Then I came out to the town, then came to Allahabad, then I took a train to Mumbai, then Jawaharlal Nehru Port Trust, वहां से फिर पुणे आया, पुणे से फिर वापस वाराणसी, सोनभद्र गया, वापस वाराणसी एंड देन बैक टू दिल्ली आफ्टर 19 डेज। मुझे ऐसा लगता है कि 22 पॉलिसीज लेके आया था उस समय, इतनी कड़ी मेहनत करके। 22 policies, very good. यस, यस, एंड वो 22 पॉलिसी आज कहने के लिए लगता है कि शायद पता नहीं, ठीक है क्या बड़ी बात है, बट इतनी ज्यादा उसके लिए मेहनत की थी मुझे, और मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था कि शायद वॉल्यूम वाइज आज जो भी चीजें हो रही हैं, जिन चीजों की चर्चा हो रही है, उनके मुकाबले वो कुछ नहीं था। बट वो 22 पॉलिसी उतनी मेहनत के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ उन चीजों में। एंड वो लगातार वो प्रोसेस था ना, मेहनत करने वाला और लगातार अपने आप को पुश करने वाला प्रोसेस था, वो लगातार मुझे यकीन दिला रहा था कि यू आर ओके, मूविंग इन राइट डायरेक्शन। एंड धीरे 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 करके ग्रेजुअली मैं तैयार कर रहा था कि आई लुक बियॉन्ड एयरफोर्स एंड टू डू समथिंग एल्स। तो ये मेरे मन में आ रहा था उस समय। Fantastic, या fantastic. Tell us या more about Ajit 2012 and Ajit today. How much is the difference in competency, knowledge? What all has been happened now? आज आप उस अजीत को देखते हो और आज आप देखते हो, क्या डिफरेंसेस कहाँ से आए? डिफरेंसेस ये है कि देखिए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो रहने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बेंट ऑफ माइंड है कि किस लिए काम करना चाहते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी उस समय भी होनी चाहिए कि यू वांट टू हेल्प समवन, एंड टुडे आज भी होनी चाहिए, यू वांट टू हेल्प समवन। यू वांट टू कैरी योरसेल्फ एज अ वेरी डिसेंट प्रोफेशनल इवन इफ यू डोंट हैव। समटाइम्स जब आपके पास सक्सेस बड़ी नहीं होती है तब भी आपको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आप कमजोर होते हो, उस समय शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा स्टिफ होती है, लेकिन कैरी तो करना पड़ता है आपको। तो बहुत सारी चीजें कॉमन होगी। फॉर एग्जाम्पल एथिक, आपको हेल्प करना है, आपको चालाक नहीं बनना है, चतुराई नहीं दिखानी है ज्यादा। तो बहुत सारी जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं वो तो बिल्कुल वही रहेंगे जो आज हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं, यू डील विथ मोर पीपल, धीरे धीरे आपकी बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट होती जाती है, यू बिकम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट। जो नहीं होता, जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाती है, यू बिकम काइंड ऑफ हम्बल पर्सन, यू बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन, स्टिफनेस थोड़ी गायब होनी शुरू हो जाती है, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग। ऑफ कोर्स अकेले आप काम करते हो, देन यू आर सपोर्टेड बाय अ लार्ज, आई मीन डिसेंट team people, then you advise other people, and talking to Yogi, talking to 99 people, it was not there in 12 years back and 2012। so obviously बहुत सारे changes होंगे। अच्छा लगता है, और जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि there are so many people relying on us। fiduciary जिसको responsibility होते हैं, the money that we are managing, many crores money, 10-10 करोड़ एक एक आदमी का मैनेज करते हैं, तब शायद 10 या 20 हजार की एक पॉलिसी अच्छी लगती थी, आज 1 करोड़ की के क्लाइंट को जब साइन करते हैं तो वो भी खुशी मिलती है। बट शायद उस समय की 50, आई स्टिल रिमेम्बर गोइंग टू अ प्लेस विथ योर लैपटॉप, और उस समय 50,000 का कोई दिल्ली में कोई केस था, इफ यू रिमेम्बर योगी, और उस समय कितनी बड़ी खुशी थी। वो 50,000 की खुशी आज शायद 1 करोड़ वाले से नहीं मिलती है। तो सब जर्नी का पार्ट है। पॉइंट इज वी शुड बी एंजॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ द जर्नी, और जो सक्सेस जिस पीरियड में वही बड़ी है, आज की ये बड़ी है, तब की वो बड़ी थी। Very good, very good. I can see on your behalf, I can see drastic changes. I can see Ajit was confident person then also, but aaj Ajit is a different Ajit, of course. Tell us more about this wealth management, financial planning. ये जो business है, ये business में अगर एक दो तीन आपको एक दो पॉइंट बोलने पड़ेंगे which are very crucial for a advisor to adopt, तो वो क्या होंगे? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन लेट मी ट्राई कि 2-3 चीजें क्या इंपॉर्टेंट। पहले तो बहुत सीखने का बेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा सीखने का होना चाहिए, बिकॉज लाइक आप दो लोग हैं, दोनों ही एक समान फिजिकल स्ट्रेंथ वाले हैं, लेकिन एक दोनों पेड़ काटने जा रहे हैं, एक हाथ में एक्स है जो जिससे काट रहा है, एक के हाथ में टूल नहीं है और वो हाथ से काट रहा है। तो कौन, दोनों ही लोग इक्वली टैलेंटेड है, लेकिन जिसके पास टूल नहीं है वो कैसे पेड़ काटेगा या कोई लकड़ी कैसे काटेगा। मैं शार्पन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो टूल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लगातार अपने आप को कैसे ट्रेन करके और उस योग्य बनाना कि किसी के सामने, सी नो पीपल, इफ यू आर गोइंग टू मीट समवन फॉर 30 मिनट्स, आप 30 मिनट्स वो आपको सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसको क्या देने वाले हैं उसमें इंटरेस्टेड है। तो 30 मिनट के अंदर आप क्या बोलने वाले हैं जिससे अब उस व्यक्ति की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। he doesn't want to meet another, he or she doesn't want to meet yet another guy जो कि आके उसका टाइम लेके और चला गया, ठीक है सर मैं आपको बता दूंगा।
तो व्हाट प्रॉब्लम एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू सॉल्व? और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए आपके पास टूल होना चाहिए और रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए लगातार। अब मॉडल कुछ भी हो सकता है, वन मॉडल इज योर मॉडल। दूसरा सेल्फ डेवलपमेंट वाली बात होनी चाहिए। मुझे याद है मैं ट्रेन में जाता था जब एयरफोर्स से निकल के, तो मैं कोई ना कोई किताब लैप करता था, एक किताब उठाता था। और आई डोंट नो, यहाँ पे डेफिनेटली सभी लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ तो करते होंगे। और एक किताब है, मुझे याद है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड शॉर्ट्स की किताब है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है वो नोट कर सकता है। और एयरफोर्स में था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था निकलने का कि मैं क्या कैसे करूं, कहाँ से निकल सकता हूँ। लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद लगता था कि बस आज ही मैं कर लूं, ट्रेन से निकल के कुछ कर लूं। तो आप जब सीख रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या आपके अंदर गूज बम्स आते हैं क्या? या आपकी क्लैरिटी इतनी ज्यादा है कि क्यों कर रहे हैं? पहले तो यही देखना है कि मैं क्यों हूँ। 99 100 पीपल यहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, सभी को पहले तो यही सवाल करना है कि मैं क्यों करना चाहता हूँ, मेरा मेरा रीजन क्या है। और ये रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। किसी का होगा कि समवन वांट्स टू मेक अ करियर in life insurance, someone wants to be specialist in life insurance, someone wants to cover other areas of financial planning, someone wants to just add to extra income than she or he is getting already in some form. हर किसी का रीजन बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। फिर तैयारी शुरू होनी चाहिए कि ओके, अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, तो मेरी तैयारी कैसी होनी चाहिए। जो कुछ भी बनना है उसकी तैयारी उसके जैसी होनी चाहिए। तो बहुत ये पाथ क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कर लूंगा तो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ वो कर लूंगा, वो भी नहीं हो कुछ और नहीं की, नहीं तो मेरी जॉब तो है ही है। अगर क्लैरिटी की अगर कमी है, देन यू आर गोइंग नोवेयर। तो मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी क्लैरिटी, देयर शुड बी ट्रेनिंग, देयर शुड बी ऑनगोइंग प्रोसेस। और ये एक दिन की बात नहीं है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस करने के लिए। दूसरा, क्लाइंट के माइंडसेट को समझना जरूरी है। यू नीड टू गो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च अबाउट द क्लाइंट। आप जाके पता चल जाना चाहिए, जाके वहां पे गेस नहीं कर सकते, क्योंकि वही 20-25 मिनट का टाइम है। और खासतौर से पहले 10 मिनट के अंदर अगर आइस ब्रेकिंग हो गई। एक बात याद आ गई कि क्या करना चाहिए अगर क्लाइंट की मीटिंग की बात कर सकूं। आई डोंट नो इफ आई एम मूविंग फास्टर Yes, देन योर yes, you क्वेश्चन और can go नॉट। ahead. Let's take views also, guys. आप सब लोगों के लिए मैंने चैट बॉक्स खोल दिया। आपको लगता है हम क्लाइंट की मीटिंग्स पे भी बात करें, कुछ डिटेल में जाएं, आपको लगता है जाना चाहिए, तो से यस इन द चैट बॉक्स। क्योंकि अब जिनसे आप सीख रहे हैं, 2700 कस्टमर बनाने के लिए एटलीस्ट 5-6,000 कॉल्स किया होगा। बिकॉज 5-6,000 कॉल्स के बगैर नहीं हो सकता। इट्स नॉट ए 100% क्लोजर रेशियो। Yes, fantastic. You are learning. Very good. Please make notes, because people who make notes, they make notes. Okay? Very good. Very good. This is a fantastic audience, Ajit. Let me tell you one thing about them. इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग के लिए जुड़ गए हैं। लाइक सम ऑफ देम आर इन रूरल एरियाज। कई लोग हल्द्वानी में ऊपर पहाड़ों में है, राइट। कई लोग भीलवाड़ा में है, जैसे मनोज सावरिया जी भीलवाड़ा में, राजस्थान। यू नो, राइट। कई लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से स्ट्रगल कर रहे हैं, घर से, बट दे आर डूइंग स्लोली एंड स्लोली। सो दिस इज अ वेरी यूनिक। एंड कुछ लोग हैं जो आज पहली बार ज्वाइन किए। सम पीपल हैव ज्वाइंड दिस ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम। सो दिस इज व्हाट द ऑडियंस वी हैव। नाउ लेट्स गो इनटू क्लाइंट डिटेल्स। क्लाइंट के पास 20-25 मिनट जाने से पहले अजीत सिंह क्या करते हैं और व्हाट ऑल वी शुड डू, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बीच में एक वर्ड कहीं आया था, एजेंट। और जब मैं एसडीएफसी में ज्वाइन किया था फॉर माई सेल्फ या मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि एयरफोर्स था तो लिमिटेशन थी, तो आई यूज्ड टू से आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन एसडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ। जिस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करता था, इससे पहले कि आदमी को समझ में आया कि ये वही बात है जो एक एजेंट के बारे में होती है, तब तक वो बधाई दे देता था मुझे, क्योंकि उसको लगता था कि तो बहुत बड़ी बात बता रहा है, कुछ ज्वाइन किया है। और मैं जेन्युइनली मीन करता था। आई यूज्ड टू फील प्राइड इन टेलिंग समवन आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और उसको लगता था कि ये ट्रेनिंग किया हुआ है। और फर्क होता है, आपने देखा होगा कि एक ही प्रोफेशन के दो अलग अलग लोगों के अंदाज अलग होते हैं। अगर आपको ये नहीं फील होता है कि मेरा अंदाज अलग है, तो यू नॉट गोइंग टू मेक एन इम्प्रेशन। तो अगर अगर जब आप जिस अंदाज के साथ और हेल्प करने के अंदाज से, कि आपने थोड़ा रिसर्च कर लिया, आप जो भी कंपनी का चाहे जो भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लाइफ हो सकता है, जनरल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। आपकी प्रोडक्ट की लाइनअप की जानकारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च इतना अच्छा होना चाहिए, प्लस क्लाइंट के बारे में भी रिसर्च होना चाहिए। तो मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि क्या चीज क्लाइंट को हेल्प करने वाली है, फॉरगेट अबाउट कि क्या चीज आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि आपका जो केक है ना, वो क्लाइंट के सक्सेस के बाद आना चाहिए।
अगर ये माइंडसेट है तब तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग। लेकिन बार बार घूम घूम के एक ही बात आनी चाहिए कि नहीं ये वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर शायद कमीशन या ब्रोकरेज मेरी बहुत ज्यादा होने वाली है। क्लाइंट इतना डम नहीं है, उसको पता चल जाता है कि घूम फिर के आप क्या कहने वाले हो। So during the discussion with the client, if you are doing all the talking, आप ही सारी बात कर रहे हैं, 90% आप बात कर रहे हैं, तो client is just waiting for you to stop and वो बोलता ठीक है मैं बताता हूँ आप। But if you somehow get the client to speak even 40%, 50% of the time, ideal है कि वो और ज्यादा बोले, but it's easier said than done, क्योंकि आप जा रहे हो कहीं ना कहीं आपको बोलना ही होता है, आपको इंटरव्यू दे के बताना ही होता है। But if you can somehow get the client speak, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कोई आदमी बोलता है तो बोलते बोलते इमोशंस आनी शुरू हो जाती है एंड वो कनेक्टेड फील करता है कि ये मेरी स्टोरी है। तो मैं किसी से बात कर रहा था और मैं बोला कि आप जाके क्या कोई आता है तो क्या करते हो। मैं मेरे पास किसी एएमसी का वाइस प्रेसिडेंट मेरे से बात कर रहा था, पूछ रहा था सर बात कीजिए क्या है, एंड ही वाज गोइंग टू मीट समवन हु इज इक्वल टू मी, और मैं उसको बता रहा था, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उसको मैं बता रहा था when you are going to someone, don't start speaking everything। और ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे जैसे किसी और आदमी के पास जा रहे हो तो आपको क्या बात करना चाहिए। मैं बोला कि don't have an urge to speak so much। आप, क्योंकि वो आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है ना, वो चाहता है कि लोग सुने। तो अगर आप उसको इनकरेज कर सकते हो कि वो अपने बारे में कुछ बताए, कुछ बोले, थोड़ी सी बताए, किसी तरीके से 2 4 5 मिनट अगर आप बोलने के लिए आप इनकरेज कर पाते हो, देन धीरे धीरे अचानक छठे मिनट में वो क्लाइंट, लेट मी कनेक्ट दैट थिंग विद द क्लाइंट, कि क्लाइंट बोलता अच्छा ठीक है आप बताइए। जब वो स्टोरी बोल लेता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, सर आई जस्ट वांट टू नो हाउ हाउ हैज बीन योर फाइनेंशियल जर्नी सो फार, व्हाट in terms of financial savings, what are the instruments that you have relied the most so far? Do you rely so much on FD? Are you have also some exposure to life insurance or some other instrument, depending on jo aap kar rahe ho? Have you taken a term insurance? Would you like to share with me, have you done specially something for your kid who is likely to go for education after 5 years or 10 years? Are you doing something separately for your retirement? अब इन सवाल को इतने तरीके से पूछना है। एक तो होता है बड़ा क्राउड बिहेवियर होता है, जैसे कई बार क्राउड जो बिहेवियर होता है बड़ी रटी परिपाटी में अपनी बात को कहते हैं। एंड देन मैंने बोला ना कि विनर का अंदाज अलग होता है। शिव खेड़ा बड़ी पॉपुलर स्पीकर है, राइटर है, क्या बोलते हैं वो, कि जो विनर है वही कहता है, उसका कुछ अलग नहीं होता है, बट अंदाज थोड़ा अलग होता है, लोग सुनना चाहते हैं। तो अगर आप जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ वही सवाल, एंड इसमें एक इमोशन फैक्टर आता है, इफ यू सेइंग समथिंग विद इमोशन एंड एम्पैथी, देन इट विल एलिसिट अ डिफरेंट रिस्पांस, उसका रिस्पांस अलग होगा। और हाँ सर कर लीजिए ना, बड़ा अच्छा तो होता है, कर लीजिए लाइफ इंश्योरेंस, हाँ ये बड़ी अच्छी पॉलिसी, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो अच्छा है, बोनस भी अच्छा मिलता है, सर ले लीजिए। लाइक आर यू समवन लाइक दिस, और यू आर समवन लाइक दिस कि सर आई कैन नो नाउ, आई नो आई हैव टेकन अ नोट। आप हिंदी बोले इंग्लिश में बोले कुछ भी बोलिए, फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने नोट बना लिया है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो श्रद्धा आपकी बिटिया है वो 5 साल की है, करीब करीब 13 साल में वो 18 साल की हो जाएगी, एंड दैट टाइम शायद आप अपनी नौकरी से उसकी एजुकेशन का पूरा खर्चा तो कर लेंगे क्योंकि नौकरी है, लेकिन जब 18 साल में बड़ा खर्चा चाहिए तो सडनली आपको ड्रेन आएगा। तो क्या आपने सेपरेट कुछ अरेंजमेंट की है, या आई ऑल्सो नीड टू लुक एट, एक बार मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ इफ यू अलाउ? अगर आप परमिट करें तो क्या मैं कुछ बता सकता हूँ, बिकॉज देयर इज वन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट लाइनअप जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही जाता है। रिस्क प्रोफाइल से क्या मतलब हो सकता है, समवन सेज कि नहीं मुझे ग्रोथ रेट ज्यादा चाहिए, तो लाइफ इंश्योरेंस के आप चाहे तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट दे सकते हैं। समवन सेज नो आई एम वेरी कंजर्वेटिव और मुझे मुझे बिल्कुल वोलेटिलिटी वगैरह नहीं चाहिए, यू कैन पॉसिबली गिव अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। लेकिन सोल्यूशन तो चाहिए उसको। आप अगर टेक्निकलिटी में ज्यादा जाएंगे तो वो प्रोडक्ट डिस्कशन हो जाएगा। यू डोंट हैव टू गो इनटू यू नो व्हाट, क्लाइंट के साथ आज भी मैं मीटिंग करके आया हूँ, मेरी मीटिंग 3.5 घंटे चली है और 3.5 घंटे तक मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं किया क्लाइंट से। ट्रस्ट मी, आई एम मीनिंग इट, आई हैव नॉट टॉक्ड, एंड अभी भी नहीं किया हूँ। आज पूरा दिन बीत गया है और मैं प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं किया हूँ, एंड द क्लाइंट इज सोल्ड, कंप्लीटली सोल्ड। अगर आपको प्रोडक्ट बोलना पड़ रहा है, प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, यू हैव टू टेल सोल्यूशन, लेकिन यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी। मैं मानता हूं योगी आपकी बात कि 10 साल के एक्सपीरियंस या शायद 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऐसी बात कर रहा हूँ, ये टाइम लगेगा। लेकिन सिंसियरिटी नहीं, सिंसियरिटी में टाइम नहीं लगता। आपकी नजरों से पता चल जाता है सामने वाले को
या आप झूठे व्यक्ति हो या सच्चे आदमी हो। एक Absolutely. स्टोरी बताता हूँ। 2012 में मैं एक बार रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में सीनियर टेरिटरी मैनेजर था। एयरफोर्स के बाद मैं रिलायंस में था 5 साल 6 साल तक। तो मेरा एक जूनियर जो सेल्स मैनेजर था, जिसमें वो मुझे लेके गया कि एक डिफेंस कॉलोनी बहुत हाई पेइंग एरिया है, वहाँ एक बैंक के कस्टमर हैं, बड़े हैं, और आप सर ये कंपनी का हेल्थ एंड वेल्थ बड़ा प्रोडक्ट है, इसमें प्रीमियम 1 लाख आता है, चलिए मेरे साथ और मैं वो करेंगे। आई वेंट टू द क्लाइंट एंड जनरली जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें बहुत हल्ला गुल्ला और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। न सिर्फ सेल्स मैनेजर के ऊपर हम डालते थे एज अ ब्रांच मैनेजर, बल्कि ब्रांच मैनेजर के ऊपर से प्रेशर था कि कितना करोगे। तो जनरली ऐसे में लगता है कि जो कोई आदमी, मैं थोड़ा ठेठ में बोलूं, लपेटे में आ जाए तो ठीक है। एक तो होता है जनरल टेंडेंसी कि आ जाए, कहीं से आ जाए, हो जाए। अब मीटिंग में जा रहे हैं विथ एक्सपेक्टेशन और क्लाइंट से बातचीत करते पता चला कि वो मेडिकल के किसी ट्रीटमेंट से ऑलरेडी वो आदमी गुजर रहा है। बातचीत करते करते जब खत्म हुई बात, तो यू नो व्हाट आई हैड टू से, एंड मैंने बोला कि सर, आफ्टर लिसनिंग केयरफुली with you and also in keeping in view the product lineup which we came with, I'm sorry to say this product doesn't meet your requirement. Even if we give you, आपका claim repudiate हो जाएगा, claim आपका settle नहीं होगा, so there is no point giving you this product. And उस दिन कुछ और नहीं दिया, कुछ और नहीं सोचा। मैं कहा कि तो थैंक यू फॉर द टी, उन्होंने अच्छे से हॉस्पिटलिटी की, टी पिलाया, आई एम गोइंग बैक बट आई प्रॉमिस आई विल कम बैक टू यू विद समथिंग एल्स। जब भी हमारे पास फ्यूचर में कुछ भी आया, करीब करीब 2.5 से 3 साल के बाद आई हैड अ चांस टू गो डिफेंस कॉलोनी के उस घर में। जब उनका घर बिक गया, बाद में किसी फाइनेंशियल 30 करोड़ का घर बिका था और बहुत सारा पैसा इधर उधर खर्चा हो गया, लेकिन उस दिन मीटिंग होने वाली थी जब उनको शायद कुछ 50 लाख के आसपास पैसा देना था। जब मीटिंग हुई और ही वाज इम्प्रेस्ड, और अभी मेरे अर्ली डेज थे, और उन्होंने 2 करोड़ 40 लाख का चेक देना शुरू दे दिया। एंड मैं अपने आप इमोशन को संभाल रहा था, क्योंकि इससे पहले 50 लाख का भी नहीं आया था। पहली बार लाइफ में 2 करोड़ 40 लाख का चेक आता है, आज भी बड़ा लगता है, तब भी बड़ा था। Wow, 2 crore तो 40 lakh. That's awesome. That's awesome. हाँ हाँ, 27 जुलाई 2012 तारीख याद है मुझे। Oh, you remember the date? Wow. हाँ, तो उनकी वाइफ और उनको बोला कि इफ यू वांट टू डाउट, आई एम न्यू इन द ट्रेड, इफ यू वांट टू डाउट समथिंग प्लीज डाउट ऑन माय एबिलिटी। मेरी योग्यता पे संदेह कर लेना, मेरे इंटेंट पे संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि आई विल टेक केयर ऑफ दिस मनी, एंड जो योग्यता है वो मैं सीख लूंगा, हो सकता है योग्यता में थोड़ी कमी हो। ये बोलते हुए आई बिकेम लिटिल टीयरी, मेरी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए, लेकिन मैं अपने इमोशन को संभालता रहा। वी केम बैक, तब से वो बेंचमार्किंग हो गई। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने क्लाइंट को जिसको सर्विस दे रहे हैं, इफ यू वांट टू रियली बिकम सक्सेसफुल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 5 10 15 20 पॉलिसीज। इफ यू वांट टू मेक अ करियर एज अ फुल टाइम करियर, लाइक आप ग्रो करके इंटरनली, अगर यंग है, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर बहुत सारे यंग लोग होंगे जो सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बनने की एस्पिरेशन रखते हैं, या फिर जो हाउसवाइफ हैं, या कोई सीनियर सिटीजन है, कोई भी हो, लेकिन जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर क्लाइंट के लिए आप सोचना शुरू कर देंगे, देन देयर इज नो एंड टू व्हाट कस्टमर कैन गिव यू, माइंड इट। और एक बात, अगर आपने क्रेडिबिलिटी साबित कर दी जेन्युइननेस के साथ और ऑनेस्टी के साथ, 2 स्किल की जरूरत है, एक ऑनेस्टी और एक स्किल, ये दोनों अगर आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्लाइंट विल नॉट ट्रस्ट यू विथ 1 पॉलिसी या 2 पॉलिसी, द क्लाइंट विल ट्रस्ट यू विथ ऑल दैट दे हैव, एवरीथिंग। मेरे पास क्लाइंट का पूरा घर होता है। इट्स आई हैव नेवर सोल्ड अ प्रोडक्ट टू द क्लाइंट, मुझे पूरा ही पैसा चाहिए और क्लाइंट देता है। 90% क्लाइंट्स का पूरा वॉलेट शेयर हम मैनेज करते हैं, 90% से ज्यादा। क्लाइंट 2 लाख रुपए भी हमसे मांगते हैं कि अजीत वो दांत का एक्सट्रेशन या कुछ ऐसा कराना है, तो 2 लाख रुपए की जरूरत है, काइंडली आस्क योर टीम टू रिडीम इट। तो सबसे बड़ी चीज, मैं जस्ट टू Wow, समराइज that's योर awesome. I will take a क्वेश्चन। pause here. आप बोल रहे हो कि क्लाइंट का 100% उसके पास 100 रुपया है, तो 90% वो आपके पास ट्रस्ट करता है, पैसा रखता है। यहाँ पर हमारे पास उल्टा है, वो 10% भी नहीं देता है 100 में से। वो देगा जब ये साबित कर चुके होंगे कि जो आपकी प्रोडक्ट लाइनअप है। सी, इफ आई एम गोइंग फॉर अ टर्म इंश्योरेंस, तो टर्म इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा देगा। व्हेन यू गोइंग फॉर वेल्थ मैनेजमेंट, तो आपको उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट देने हैं। यू हैव टू प्रोवाइड लिक्विडिटी आल्सो। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और पूरा का पूरा पैसा आप डाल के बोले 5 साल बाद निकाल लेना या 15 साल के बाद निकाल लेना, ऑब्वियसली क्लाइंट विल नॉट गिव यू ऑल द मनी। But if you can provide some liquidity also, then client will say, okay, this is the money that I possibly don't need for the 5-10 years, and this is the money I may need any time.
So you have to give a blend of solution if you want to manage 100% wallet share. But if you're reaching the client with a limited product, then client will give you limited money. That's very fair. Fantastic, fantastic. Ajit, I think now people are itching. उनको खुजली हो रहा होगा कि हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. So let me just open this Pandora box. जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक रिएक्शन बटन है, रेज योर हैंड. मैं आपको अनम्यूट करूंगा. क्वेश्चन को थोड़ा फिल्टर भी करूंगा, मतलब अगर जायज, प्लीज डोंट माइंड इट. प्लीज रेज योर हैंड. आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अजीत से, तो देन वी विल गो टू द कंक्लूजन सेशन. यस, रेज योर हैंड्स अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो. चैट बॉक्स भी मैं ओपन कर रहा हूँ. इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन, आप चैट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं. समवन आस्क्ड कितने दिन से एयरफोर्स में हूँ. 9 साल में एयरफोर्स में किया था. एंड सबको धन्यवाद. बहुत सारे प्यार भरे वेलकम मैसेजेस आए हैं. सबको मैं दिल से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, कंसिडरिंग कि आप लोग अर्ली हैं. और मैं दिल से चाहूंगा कि जैसे मेरे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, आप सब लोग बहुत अच्छा ग्रो करें. और जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है, आप बहुत करियर में ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, एडिशनल इनकम की स्ट्रीम चाहते हैं, बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा. बहुत ऑनेस्ट होने की जरूरत. ट्रस्ट मी, बात सबसे बड़ी क्वालिटी, आपको बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने की जरूरत, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होने की. एंड इफ दैट इज टेकन केयर और स्किल को बढ़ा लिया, देन आपका कोई कंपटीशन नहीं है. नो वन इज कंपटीशन. यस, शायद क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. विजय हैज अ क्वेश्चन. यस विजय सर, गो अहेड. हाँ, नमस्ते सर. नमस्ते जी, बताइए. नमस्ते विजय जी. सर एक क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना है थोड़ा सा कि आदमी जो आने वाली जो जनरेशन है वो कहती है कि गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, बस लाइफ सेटल हो जाए. और आप सर गवर्नमेंट नौकरी पे होने के बावजूद भी जो है आपको कौन सी ऐसी चीज प्रेरित करती थी जो आप इतना, मतलब आपका गोल मतलब बड़ा था, विजन पहले से बड़ा हुआ था कि ये सर ऐसा मतलब अचानक से, क्योंकि आपका सर 5 से 6 लाख रुपया तो पैकेज बनता है, क्योंकि मेरा छोटा वाला भाई है वो भी एयरफोर्स में है. तो 5 से 6 लाख महीने का कि साल का? नहीं, साल का वही 45-50 हजार रुपया तो महीने आता है ना. देखिए, पहली बात उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि हर एक आदमी का जो, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन विजय जी. हर एक आदमी का इकोसिस्टम कुछ ऐसा है कि हर एक आदमी को अलग अलग काम है, रोल है, और सबका योगदान है अच्छा है. और हर एक आदमी अपने टैलेंट और क्या वो कर सकता है उसके हिसाब से अगर उसको काम मिल जाए तो वो लाइफ में सेटिस्फाइड फील करेगा. जब एयरफोर्स में था तो मैं एक सी क्लास एम्प्लॉय, क्लरिकल या अकाउंटेंट कैडर में था. और मुझे लग रहा था कि इस समय में होता तो मेरी शायद 1 लाख रुपए सैलरी होती वहां पे, या 90,000 रुपए सैलरी होती. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने मेहनत भी की थी और मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा कर सकता हूँ, मेरी टैलेंट ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, ऐसा मुझे लग रहा था. पता नहीं हिंट, मैं एयरफोर्स के अंदर कई ऐसे डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था जहां पे मेरे पास एयरफोर्स के बहुत सीनियर ऑफिसर्स को पछाड़ते हुए मैं फर्स्ट रैंक आया था. डिबेट कंपटीशन में पहला आया था, राइटिंग कंपटीशन में पहला आया था. तो बार बार मेरी लाइफ में ऐसी चीजें होने लगी थी जो मुझे यकीन दिला रही थी कि यू आर पॉसिबली मेड फॉर बिगर रोल. ऐसा उसी समय लगने लगा था और उसके लिए मैं मेहनत करना शुरू किया. और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि विद रेस्पेक्ट टू एवरीवन, चाहे वो किसी क्लास का है, चाहे लेबरर है, चाहे कुछ भी है, सबके लिए एक समान सम्मान की बात कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ चीजें लाइफ में मुझे अभी मिल रही हैं, मुझे वहां पे नहीं मिल सकती थी. अभी मेरे पास 23 एम्प्लॉई हैं, शायद ये बताया नहीं. आई एम सपोर्टेड बाय, I also didn't know, Ajit, very good, fantastic. और मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख रुपए सैलरी पे करता हूं मैं सबको मिला के महीने की, तो 1,20,00,000 तो सैलरी हो गई. तो अगर इस तरीके की मैं एम्प्लॉइज को कर पा रहा हूँ, उनका इकोसिस्टम है, इतने सारे लोगों को हम और अच्छे से सलाह दे के उनकी लाइफ में चेंजेस, मेरे पास अगर मैं कभी मैं शेयर करूंगा कि जिस तरीके के मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे पास एयरफोर्स, ओके पब्लिक फोरम में पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, एयरफोर्स में मैं जिस रैंक में था उस रैंक के सबसे बड़े अधिकारी को मैंने एम्प्लॉय बनाया हुआ है. एयर वाइस मार्शल इज रिपोर्टिंग टू मी. तो आई होप यू नो एयर वाइस मार्शल इज मेजर जनरल ऑफ आर्मी. अगर एयरफोर्स में होते तो आपको उनसे मिलने के लिए 1 महीना वेट करना पड़ता. नहीं, उनके आने से हमें मार के भगा दिया जाता. तो आई मीन विथ ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग, सी विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, आई एक्चुअली रिस्पेक्ट अ लॉट, लेकिन कहना चाहता हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि उनसे मिलूंगा. तो ये बात मैं विनम्रता से कहता हूं. What an amazing journey. Let's take few more question. एक आनंद जी मैं आपके पास आता हूँ. Just a moment. एक question है, Bimal is asking, what did you do for self development after your Reliance Life job?
You got it? Uh, What did you say again, do? please. Yeah, what did you do for self development after Reliance Life Jobber जब आप यहाँ आ गए? What all you went through? कौन सी training? All that thing is asking. देखिए एक ट्रेनिंग उसी के समय हो रही थी। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट जब थे तो एचडीएफसी का ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत अच्छा था। अब वो कहाँ पे है, कैसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ट्रेनिंग सेशन है ये चल रहा है, मैं सुन रहा था और एक एक बात को जिस बारीकी से आप बता रहे थे, अगर जिसका सही बेंट ऑफ माइंड होगा वो सही पिक करेगा। जहां तक मेरी बात है तो मैं किताबें पढ़ता था, इसके अलावा मैंने लिमरा सर्टिफाइड हूं। मैं एक्चुअली लिमरा लाइफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट का कोर्स एक बहुत एडवांस लेवल का होता है, जो कि अभी भी अथॉरिटी होता है कई कई मामले में, जो परसिस्टेंसी या बहुत सारी चीजों के लिए। करेक्ट। तो जर्मनी का कोई ट्रेनर था रुडेल्फ विरेली, अभी भी याद है, मैं कोलकाता गया था उसके लिए। इसके अलावा मैं लाइसेंशिएट और एसोसिएटशिप के कुछ एग्जाम दिए थे, जो इंश्योरेंस से जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक्स बताए जाते हैं। ऑब्वियसली एमबीए तो मैंने किया ही था, और पढ़ाई इज काइंड ऑफ एन ऑनगोइंग थिंग फॉर मी, लगातार चलने वाली चीज है। अभी भी मैं एक जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी से, आई एम लाइकली टू कंप्लीट नेक्स्ट ईयर। तो ये लगातार चलते रहना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी को जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं, उतने ही अच्छे से लोगों को सर्व कर पाते हैं। तो अलग से अगर कोर्स की बात करूं तो जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया है वैसे वैसे जिन जिन कोर्सेज का नाम लिया, एक कोर्स जरूर किया आपने, विच इज 2700 कस्टमर से क्लोज करने के लिए 5000 प्लस सेल्स कॉल जरूर की होंगी। जो 5000 सेल्स कॉल है वो अपने आप में एक पीएचडी है, आई थिंक, बिकॉज एक मैं ट्रेनर हूं, और जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे दिशा, वो दिशा का भी मैं बाद में सर्टिफाइड दिशा यस मैं बाद में सर्टिफाइड ट्रेनर भी बना। डिजायर माउंटेन वगैरह वो कॉन्सेप्ट हम भी यूज करते हैं अपनी ट्रेनिंग। यस सो आई टेल यू वन थिंग, वन ऑफ माय गुरु यूज्ड टू से, एक अच्छी सेल्स कॉल इतना सिखा सकती है जो एक पूरे दिन का ट्रेनिंग सेशन नहीं सिखा सकती। सो समटाइम तो दिशा ट्रेनिंग की जो बात थी, मतलब अपने आप को लगातार एजुकेशन मोड में डालिए। सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार आप कुछ ना कुछ सीखने का होना चाहिए। अगर यूट्यूब भी खोल रहे हैं तो आप, यूट्यूब हर कुछ देता है आपको, लेकिन आप उस चीज को हटाते जाइए जो आपसे रिलेटेड नहीं है। अदरवाइज यूट्यूब डिसाइड करेगा कि आप क्या देखेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो आपके पास इतना विल पावर होना चाहिए कि यूट्यूब मुझे क्या सर्व करे। अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को दिखा रहा है और आपको वो कहीं चीज, वो बात कहीं ले नहीं जा रही है, तो आप उसको हटा दीजिए, बोल दीजिए नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं देखना है। ट्रेनिंग से जुड़ी हुई कोई बात है तो देखना है। ट्रेनिंग में भी वो बात जो क्यूरेटेड हो। एक तो होता है ना कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही बात को 10 लोग अलग अलग तरीके से कहेंगे, सुन के समझ नहीं आएगा किसकी बात सही थी। लास्ट में एक भी आदमी की आप बात नहीं सुनने वाले। तो तो पहले तो एम्प्टी करने वाली बात है कि कितनी बात आप जानते हैं, उसको आप एम्प्टी कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वही बात जान रहे हैं फिर भरेंगे, तो मैं सुन रहा था कि पहले तो खाली करना पड़ेगा। कई बार जैसे जैसे हम एज होते जाते, मतलब एजिंग में क्या होता है कि हम कट्टर होते जाते हैं अपने सोच में, अपने विचार में। अब कट्टर होने से मेरा मतलब है कि हमें लगता है कि हम जानते हैं, ठीक है, हाँ हाँ सुन लिया। ट्रेन एक आदमी की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है योगेंद्र, ट्रेनेबल होना। आर यू ट्रेनेबल? जैसे हम थोड़ी सी सीख लेते हैं ना, हमें मन में आता है कि हम बहुत कुछ जान रहे हैं शायद, अब हम अगर जो आदमी ट्रेनेबल नहीं है बहुत बड़े डेंजर में, ट्रस्ट में। क्योंकि वो एटीट्यूड ऐसा आ जाता है कि नहीं मैं जान रहा हूँ, हाँ हाँ समझ गया, बहुत जल्दी समझ गया बोलने की जो टेंडेंसी होती है, ये बहुत रिस्की टेंडेंसी है और वो हमें कहीं ले नहीं जा रही है। तो जानते भी हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, हो सकता है कि आप जानते हो बट दूसरे वाले आदमी का जो उसका पर्सपेक्टिव अलग है। या फिर जानते तो हैं लेकिन क्या आप फॉलो भी करते हैं उसको, उसको एक्ट भी करते हैं। तो आपका एक ट्रेनर है, शायद वही चीज जो जानते तो हैं लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ट्रेनर आपको एक्ट करवा सकता है। Yes, that's what we are trying to do. Yes. So in this program, Ajit, what happens is this is we have 2 levels of program, 3 level of program. So हमारी जो mostly यहाँ पर अभी audience है वो level 1 में है, और level 2 के लोग भी यहाँ पर है। level 2 का ये program था which you joined in, but हमने level 1 वालों को भी offer किया। reason बहुत simple है, सपने सबके बड़े हैं। So we thought to just do like that. Are you able to hear me? Yes. Okay, so let's go to Anand ji. आनंद जी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आई लाइक दिस अबाउट हिम बिकॉज yesterday he was there and he was asking lot of. आनंद जी अनम्यूट कर सकते हैं आप, प्लीज गो अहेड। मुझे किसी का फेस नहीं दिख रहा है तो आई थिंक एटलीस्ट इज इट ओके इफ आई विल अनपिन यू, देन यू विल बी एबल टू सी। या ओके सुधीर जी
सुधीर जी के पास चलते हैं। सुधीर जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन वैसे आ गए हैं मेरे पास। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो सर मैं जानना चाह रहा था जैसे अभी इसमें है। यस यस प्लीज गो अहेड गो अहेड। तो सर जैसे आपको भी कि इशू आते होंगे, जैसे रिबेट के आजकल बहुत ज्यादा इशू आते हैं, तो क्या क्या किया जाए? मैंने कहीं सुना है, सीखा पिछले है। ओके सो पहली बात, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। मैंने आज तक लाइफ में किसी को रिबेट नहीं दिया है, कभी भी, एक बार भी नहीं। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैं ऑडिबल? यस जी। यस। लेकिन एक सिचुएशन आई थी जब अर्ली था, नया था मैं, तो मुझे याद है नाम, आप क्योंकि नहीं जानते तो वो नाम ले सकता हूँ। विवेक बंसल नाम के एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेरी एचडीएफसी के कंसल्टेंट या एडवाइजर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ही मुझे एक एंडोमेंट इंश्योरेंस की पॉलिसी थी करने का मौका मिला था, जिसका प्रीमियम कुछ 20,000 रुपए था। और उन दिनों 40% का कमीशन होता था, मुझे याद है। तो 8,000 मैं कैलकुलेट करके बैठा हुआ था। जैसे ही सब कुछ हो गया तो विवेक बंसल पूछ रहे हैं कि तो इसमें मुझे तो अब कितना दोगे? तो मुझे पता तो था कि वो क्या बोल रहे हैं, बट आई प्रिटेंडेड, मैंने ऐसा बहाना बनाया कि मैं उनके सवाल को ठीक से नहीं समझ रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो मैं पूछा कैसे, उनसे बोला कि क्या आप मेरी इनकम में से अपने लिए कुछ पूछ रहे हैं? इस पॉलिसी को बेचने के लिए जो मेरी इनकम होने वाली उसमें से मांग रहे हैं? तो क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है उसमें तो जो क्लाइंट को है वो बेनिफिट से हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इनकम में से कुछ आपको दूं तो बताइए। वो इस तरह से पूछा कि शर्मा के बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं। वेरी गुड, दैट्स व्हाट, प्लीज राइट डाउन आवर वर्ड्स, मेक आवर वर्ड। मैंने कहा कि जो इस पॉलिसी को करने से मेरी इनकम होने वाली है उसमें से आप कुछ मांग रहे हैं, मैंने ऐसे बोला। और वो शर्मा के बोले कि नहीं नहीं कोई ऐसा। शब्दों का खेल है दोस्तों, हम शब्दों लेकिन उस लेवल की सीरियसनेस के लिए संदीप जी पूछ रहे थे। आनंद 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 जी, मैं अपने आप को, ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं घर पे था आज, मैं चाहता तो मैं कैजुअल हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेन समथिंग फ्रॉम दिस ऑडियंस। मैं चाहता तो मैं टाई हटा सकता था, मैं अपने कैजुअल में रह सकता था, किसी तरीके से रह सकता था, पर मुझे लगा कि आप सभी लोगों के सामने आ रहा हूं, मैं थोड़ा ठीक से रहूं। तो ग्रूमिंग से क्या होगा? अगर आप ग्रूमिंग किए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शेव करते हैं तो आप शेव ही करके रहिए। आप अगर हल्की दाढ़ी रखना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं, वो पूरी तरह से ग्रूम्ड है कि नहीं है, आप अपने को कैसे कैरी कर रहे हैं, वो बहुत कुछ फर्क। मेरे आज भी जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं या कोई भी व्यक्ति, मैं रिलायंस में कम से कम नहीं तो 500 लोगों को इंटरव्यू किया हूँ। मेरा लंबा करियर एक ब्रांच मैनेजर के तौर पर रहा है। तो मैं सबसे पहले लोगों को टाई पहनना, सूट जो ब्लेजर डालना या शर्ट पहनना, मैच कराना, जूते तक, आज भी मैं अपने हर एक एम्प्लॉय को जूते पैंट शर्ट खरीदवाता हूँ। हर आदमी जो ज्वाइन करता है उसको जाके कपड़े खरीदवाता हूँ या उसको बताता हूँ कि ये करना है। बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं आपके लिए करोड़ों रुपए की चीज कर दूंगा, इतने करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है या इतने लाख की सेविंग कर दूंगा, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता कि आप 1 लाख रुपए की भी चीज कुछ कर पाएंगे। तो अपने आप को लगातार ग्रूम करके उस लेवल तक लाना है ताकि आदमी आपके सामने मिलके कॉन्फिडेंट फील करे, इंस्पायर्ड फील करे। चलिए ठीक है, कुछ चीजें एफ्लुएंस के साथ आती हैं और सडनली नहीं होगी, लेकिन हर दिन कोशिश करना है कि क्या मैं अपना बेस्ट वर्जन यही हूँ, मेरा जो भी सबसे अच्छा हो सकता हूँ रूप, मेरी आज की आर्थिक पोजीशन के हिसाब से सबसे अच्छा मैं अपने आप को क्या ऐसे ही प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर हाँ तो ठीक है, नहीं गुंजाइश है तो इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। फैंटास्टिक तब तब फैंटास्टिक तब जाके वो बात सुनेगा, नहीं तो वो आपको ध्यान नहीं देगा आपकी बात पे। फैंटास्टिक। ये एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि एचएनआई कस्टमर से आप मिलते हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग इन करोड़, सो दे आर थिंकिंग करोड़। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अजीत सिर्फ एचएनआई से नहीं मिलते, रिटेल में भी बहुत धक्के खाए हैं। अजीत और मेरे में एक कॉमन चीज क्या है, हमने बादामनी धक्के खाए, ये चीज कॉमन है, हमारी डिग्री वही है। मेरे पास तो कोई फॉर्मल डिग्री है नहीं, बट एनीवेज एक क्वेश्चन आ रहा है अजीत कि एचएनआई कस्टमर से मिलने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन आप करते हैं, थोड़े स्टेप्स अगर जल्दी से बता पाए, इट विल बी हेल्पफुल। सी हर एक किसी का बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है।
मैं अननोन आदमी के पास नहीं गया हूँ। हम्म, तो और वो इसलिए हुआ है कि जब शुरू किया था, शुरू के दिनों में जब 2, 4, 5, 7, 8 क्लाइंट बने और उनको इतनी जबरदस्त अच्छे तरीके से सर्विस हुई, दे बिकेम माय ब्रांड एम्बेसडर। तो आज ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट, और ये सडन नहीं हो सकता, आज हर दिन लगभग, हर दिन तो चलिए ठीक नहीं है बोलना, वीक में कम से कम 5 रेफरेंसेज आते हैं। वो किसी न किसी की, हाय अजीत, ही इज माय फ्रेंड इन लंदन, या ही इज माय फ्रेंड इन हैदराबाद, वगैरह वगैरह। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सर्विस करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत और इतनी जबरदस्त ज्यादा सर्विस बढ़िया तरीके से करना है कि वो रेफरेंस देते हैं। तो ये तो एक बात होगी, लेकिन अर्ली ऑन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका निश क्या है, आप किस एरिया में, जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया में कैसे जा सकते हैं। सडनली आपको HNI अलाउ नहीं करने वाला है। HNI जनरली तभी आपको अलाउ करेगा जब कोई दूसरा HNI उसको आपके बारे में बता रहा है। करेक्ट। तो जब तक आप धीरे धीरे करते 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 पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें HNI के पास नहीं जाएंगे, तब तक दूसरा HNI आपको सडनली इनवाइट नहीं करने वाला है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले मुझे याद है कि एक दलजिंदर सिंह नैयर नाम का क्लाइंट है, उनकी 50,000 रुपए हर महीने की SIP थी और 12 लाख रुपए टोटल प्रीमियम था। ये बात है 2012 के शुरुआती दिनों की, जब 2 करोड़ 40 लाख का चेक नहीं आया था। और वो पहला 50,000 का की SIP, 50,000 की SIP बड़ी बात थी, अभी भी अच्छी लगती है, लेकिन उसको पाते ही हम जंप कर गए थे, इतना अच्छी खुशी मिली थी। तो लेकिन पहले आपकी प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन के बाद अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपने आप को प्रोफेशनली, जब भी किसी से बात करने जा रहे हैं, इतनी होमवर्क इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि आप जब बोले तो लगे कि आप अथॉरिटी हो, या आपको वाकई पता है, एटलीस्ट जिस पॉइंट को आप बोलने जा रहे हैं उस पॉइंट के लिए आप अथॉरिटी हो। उसको चैलेंज करना किसी के लिए आसान काम नहीं होने वाला है। तो वो प्रिपरेशन कीजिए एंड लगातार करते जाइए, करते जाइए। सक्सेस नहीं भी मिल रही है तब भी करते जाइए, ऐसे जैसे कि देयर इज नो टुमारो। इतनी कड़ी मेहनत कीजिए अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी सक्सेस मेहनत किए, 2 बार 4 बार किए, नहीं मिला, घर आके बैठ गए, ऐसा होता है। अगर वो करते जाएंगे, देन समडे समवन विल नोटिस यू डूइंग गुड थिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। आप लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, ट्रेनिंग लेते जाइए, अपने बोलने की शैली, अपने को प्रेजेंट करने की शैली बढ़ाते जाइए। सडनली कोई नोटिस करेगा, और नोटिस करते करते अचानक आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है आपके लिए, आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन बस, फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट कंक्लूजन। सुधीर जी हैं, सुधीर जी इज आल्सो एक्स सर्विसमैन। सुधीर जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर जी नमस्कार। सर मैं सुधीर भट्ट, एक्चुअली मैं आर्मी से हूँ इन्फेंट्री से। तो सर हेलो सुधीर जी। हाँ सर, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहा था, आपने कितनी सर्विस करी पहले एयरफोर्स में। और मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कॉमन गैदरिंग होती है तो इन्फेंट्री में आपको पता है कि इतने नॉलेजेबल, उनका जो प्रोफाइल रहता है इतना एजुकेशन वाला नहीं रहता है। तो समटाइम जब हम लोगों को बताते हैं तो वो लोग ओवरफ्लो मतलब फील करते हैं कि नॉलेज जो है मतलब ओवरबर्डन टाइप का फील करते हैं। मतलब मेरे कहने में मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब दे आर नॉट वेरी नॉलेजेबल, उनको इतना पता भी नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। और समटाइम्स जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हैं जैसे MIS हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया, जो पोस्ट ऑफिस जहाँ पे रिटर्न भी नहीं बनते हैं, वहां पे वो जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं मोस्टली। तो उनको समझाने के लिए हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, सर्विसेज, लेकिन उनकी से फिर भी वो मतलब बाहर चले जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, पहली चीज तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। ओके, तो देखिए, आइस ब्रेकिंग कुछ ऐसी चीज होती है जहां पे आदमी आपका प्रोडक्ट या आपकी सोल्यूशन लेने से पहले पहले आपको लेगा। तो आप उस व्यक्ति को एक्सेप्टेबल अगर एज ए ह्यूमन बीइंग है या एज ए पर्सन है, तब आपकी बातें भी बढ़ती है। तो जब तक आप उस आदमी को इम्प्रेस अपॉन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। तो आपको अपने फिलॉसफी से या आप अपने प्रेजेंटेशन से या बातों से कुछ इस तरह से आइस ब्रेकिंग करनी है जहां पे वो आपको, अच्छा ठीक है बताइए आप, और वो करने उस लेवल तक आपको लाना पड़ेगा। और जब जैसे ही वो थोड़ा मौका दिया, तब आपकी पोजीशनिंग प्रोडक्ट की जो भी आप देना चाहते हैं वो क्यों अच्छा है उस चीज से जो वो खुद करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो MIS करना चाहता है और आप उसको लाइफ इंश्योरेंस की कोई एन्युटी स्कीम देना चाहते हैं या कोई भी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अब आप केयरफुली उस दोनों प्रोडक्ट की कंपैरिजन अगर तरीके से बताएं, तब आपके पास चांसेस हो जाते हैं कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जब तक ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, तब तक तो चांसेस ही खत्म है। कि अगर MIS है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि MIS के मुकाबले आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट कैसे बेटर हो सकता है। पहली बात कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बहुत सारे मैच्योरिटी में टैक्स फ्री होते हैं आज की तारीख में। तो अगर 6% का रिटर्न
जैसे कोई व्यक्ति टैक्सेबल इनकम में है और उसको टैक्स देके उसके पास 5 या 6% का रिटर्न आने वाला है, और इधर आपको 6 या 7% का रिटर्न टैक्स फ्री आने वाला है, तो दोनों के बीच में फर्क हो गया। लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट को किसी तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं कि इसमें लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं है, यानी आप बेनिफिट उसको क्या क्या हो सकता है, अगर उसको एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बता पाते हैं तो आपको पोजिशनिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगेन मैं बोला कि पहले आपको यू हैव टू सेल योर सेल्फ, अगर इफ आई कैन यूज द वर्ड समथिंग लाइक सेलिंग, पहले खुद आपको सेल करना होगा या अपने आप को रखना होगा, देन यू विल हैव टू गिव द प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट देने की बारी आई तो इतनी ज्यादा तैयारी होनी चाहिए कि आपका लगा कि एक एक सेंटेंस जो बोल रहे हैं उसको काटा जाना बहुत मुश्किल होने वाला है, तब बोलेगा ठीक है, पहले थोड़ा देगा फिर थोड़ा और देगा, हो सकता है कि आगे चल के आपको पूरा दे दे, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या आपके पास है। Correct, correct. So see, two things which you need to make notes. Notes नहीं बना रहे हैं तो please. One contest I want to launch. जो सारे notes बनाएगा, I will add you in our Facebook group. And Ajit, I will also request you temporarily to join that group. जो Facebook group में मैं अजीत और अपनी एक फोटो डालूंगा, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स डालने हैं। जिसके नोट्स सबसे बढ़िया होंगे, I will give you a specially signed T-shirt by Amit Sharma and me. The T-shirt will say, I am a financial planner with your vision. उसमें आपके विजन होगा, जो मिशन आप मुझे भेजेंगे उस मिशन प्रिंटेड टी-शर्ट you will receive, but only for the person जो नोट्स बनाकर पूरे के पूरे नोट्स डालेगा, because I am making notes, right? So let me have one more question. Arnindam ji is from, you can go ahead, Arnindam ji. Good evening, Ajit ji. Good evening, Yogender. Good evening. Hello, good evening. Namaste. I am an old man from Calcutta. You look young. You look very young. Just after meeting all of you. So, Ajit ji, since you have such a meteoric career, number one, I love army people because my schooling has been in Science School, Bhubaneswar. Oh, that's nice to know. So, my last job was a CEO of a 30,000 crore company in Mumbai. And I developed a rare complication in my spine, for which I had to quit the job and come back to Calcutta. And there's only few doctors in India who can perform the surgery. Post that, I was 2 years bedridden. Oh. So slowly I recovering, and till my left side is, I'm partially mobile. So I wish you get well soon. I will not. Because the damage is permanent and there's no cure for it. So I wish you're better. You get better. Thank you. So Kotak Life approached me like they do for all 50 plus people. So I got my first IC 38 in June 2018. So I started my career in financial field. Though in hospitality and retail, I am the highest qualified in India with 3 fellowships from London. But in this, when I started, I saw people have need for medical insurance also. So I got myself with Star, and then people need the general insurance. So another IC38 and with HDFC Ergo. Then I felt while meeting people that they have other needs also. So Yes. I'm now an AMFI registered distributor and I'm with NJ. Oh, superb. And I have also a postcode with NJ. Yeah, Anindam ji, can we go to the question? Please don't mind, because we have less time here. So sir, while traveling in this journey, I think people need a lot of inputs. So I completed my CFP and on the way to become a chartered wealth manager. But people get scared to talk or discuss, and number one. And number two, I'm not getting that enough leads. That's why I'm with Mr. Yogender, so that I can develop myself from offline to online and get some leads. So do you think I'm in the correct direction?
Yeah, first of all, many congratulations. You seem to be pretty much qualified and you can articulate things very well. I can see the communication that you have. You have registered for certain courses like CWM and CFP that talks about the seriousness that you have. There is no reason why people should not benefit from your expertise if you're really very much keen and willing to assist them. Since you're quite new in the profession, new in the trade, it will take some time before you can actually meet so many potential recipient of your services. Since you have certain restrictions, physical restrictions, that may also be one of the reasons why you're not able to meet so many people. But I think with right earnest, if you're able to connect gradually, starting from your social circle, like you meet some of those people whom you already know, maybe those people could be of your Ajit ji, position. there's a problem with us people from West Bengal, especially. That without playing any third division club, we can analyze Messi or we can analyze Sachin Tendulkar. So, I mean, few days back, we have a tool at NJ. I was calculating a mutual fund investment for 30 years. 52 funds they have invested, they have redeemed, and the return was only 4.7%. So problem is people think they know everything, and when you tell them this is not right, they retaliate. Okay. Let me just barge in here. See, Anindam ji, understand one thing. If you have just started your journey in terms of getting, आपको दो प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम है कि इनफ लीड्स नहीं है. सेकंड प्रॉब्लम है कि लोग बात नहीं सुनना चाहते. ये सबकी ही प्रॉब्लम है. एक्चुअली ये सिर्फ आपकी नहीं है. Now, your one solution, you have come to the right place because ये digital classes है. Digital classes will give you a digital sales funnel. Means digitally prospects will come and you can talk to them like we are talking, right? Second thing is how to talk to them. That's the problem. क्योंकि आपके जानकार लोग नहीं बात कर रहे हैं, जानकार लोग बोल रहे हैं कि यार तुम एजेंट बन गए वगैरह वगैरह. So that problem will be well taken care of. So see, the idea is basically this is a journey, as Ajit said. एक रात में एक दिन में कोई पुड़िया नहीं है. We can give you the pudiya and tomorrow HNI call closed, right? We can give you a pudiya and tomorrow you will become COT, MDRT, TOT, right? There is no pudiya like this. अजीत भी यही बोल रहे हैं कि 2012 से 2022 ऐसा नहीं है पहले साल में ही 45 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ठोक दिया. Correct me Ajit if I am wrong, okay? It takes time. Rome was not built in a day. पर धीरे 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 with development. और आप सही जगह पे. See, many of the people are not even here. आपको congratulate करना चाहिए अपने आप को कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं. You are doing training, right? So I think these problems slowly by the time of जब आप सही method use करेंगे. और अजीत ने एक बात बहुत अच्छी बोली. आप पता नहीं notes बना रहे हैं नहीं. He is saying एक एक word चुन के बोलना है. Even every single word has to be very very carefully said. अजीत ने आपको अपनी एक गलती भी बताई जहां पे उन्होंने बोला था डिफेंस कॉलोनी में कि यार आप मेरी योग्यता पे शक कर सकते हो, मेरे इंटेंट पे नहीं, राइट? इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव एंड इट इज ऑल्सो लिटिल नेगेटिव कि व्हेन आप चेक लेने के बाद आप ये बोल रहे हो. सो जस्ट थिंक और रीड बिटवीन द नोट्स. या ओवर टू यू अजीत. एक्चुअली जो डिफेंस कॉलोनी वाली बात है उसमें इट वाज टेकन वेरी सीरियसली. दे आल्सो क्राइड विथ मी. एक्चुअली दे अंडरस्टूड. दे न्यू कि मैं इस ट्रेड में नया हूं. मैं यही कहना चाहता था कि इस प्रोफेशन में नया हूं, बट आई विल टेक केयर ऑफ योर मनी. द एबिलिटी आई विल एक्वायर इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू देम. एंड क्योंकि मेरा इंटेंट सही है इसलिए डोंट वरी अबाउट योर मनी इज व्हाट आई मेड. इसको मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाया. उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव था. तो और ये बात जब मैं किसी दोस्त को बताया, दूसरा प्रोफेशनल है, वो भी कहीं यूज किया और दूसरा आदमी चिढ़ा हुआ था. बोला नो आई डाउट योर इंटेंट. As I would like to answer one last time to the gentleman out there. पहली बात कि you are pretty much qualified as I said, or there is no reason why you shouldn't make a big success in financial advisory domain. However, there are certain things like people don't care how much you know until you care. तो अब आप अपने नॉलेज के साथ लोगों को कितनी हेल्प कर सकते हैं और क्या वो, बिकॉज सी यू कमिंग फ्रॉम अ सीनियर पोजीशन, so if you are likely to carry your seniority all the while, then people will not feel connected with you because you have to serve someone, right?
So how you are actually going to help those people? अगर वो feel करे कि हाँ, they get the service from this gentleman whose voice is very much refined, he is knowledgeable, he's done necessary certification, but how well is he likely to serve me? या तो आपके पास टीम हो, you have a team of people जो जाके कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, and you carry your seniority. लेकिन अगर आपसे सर्विस लेनी है तो उसको डर ही लगेगा कि पता नहीं जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो सर्विस की कॉल आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे. So I think the right message has to be given to all the prospects. और मुझे लगता है कि it may be matter of time कि चाहे वो leads डिजिटल मार्केटिंग की लीड फनल हो या आपके सोशल सर्कल से आती हो या वो पुराने 10 कॉलीग्स हैं जिनको ये बोलने वाले हैं कि आई हैव स्टार्टेड दिस फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस एंड आई हैव ऑल द नॉलेज. 4% 5% बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इफ यू hold someone and then give your presentation in a certain way and you prove that what you think is not right, let's look at the presentation that I have for you, and then people will get convinced by seeing the presentation if you have a right one. और बाकी बोलने को तो कुछ भी, भाई मेरा कुछ नहीं फायदा हो रहा है, मैं तो 3 साल से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है. So it's a very generic kind of statement and we don't need to be bogged down by the generic statement. We need to be very authentic, convincing in our approach. तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नहीं. With time it will be all right, I guess. And one more thing I want to tell everybody, rejection immune हो जाओ. Get immune to rejection. There is a website, go to that website, listen to this guy. His name is rejectiontherapy.com. अगर आप रिजेक्शन, मेरे जीवन में क्या हुआ, मैं टेलीकॉलर था, रोज 20 प्रेजेंटेशन, ये सब पार्ट शायद पता नहीं होगा अजीत को भी, रोज 20 प्रेजेंटेशन देता था. टेलीकॉलर टाटा एजी का पॉलिसी बेचता था, महालाइफ फोन पे 20 प्रेजेंटेशन देना होता था, 200 डायल हो चाहे 300 डायल हो, रोज 20 प्रेजेंटेशन दिया, 90 दिन तक जीरो क्लोजर. यू कैन अंडरस्टैंड द रिजेक्शन इम्यूनिटी आई वाज गेटिंग. मुझे उस वक्त तो फ्रस्ट्रेशन होता था. इनफैक्ट आई कैन शेयर हियर विद माय स्टूडेंट बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी. मैं रोज 2 बियर पीता था उस वक्त, क्योंकि आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि रोज मैं 20 प्रेजेंटेशन देता हूं और मेरी कॉल क्लोज नहीं होती है. तब मेरे जीवन में ट्रेनिंग आई. फर्स्ट टाइम आई वेंट थ्रू ट्रेनिंग and understood closing question, objection और handling question क्या होते हैं. And today you can see me here. आपको लगता है कि रिजेक्शन अभी नहीं है मेरे लाइफ में, रिजेक्शन जरूर आएगा और रिजेक्शन इम्यूनिटी आपको बनाना है. उसके लिए क्या है वो हम क्लासेस में करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. वी हैव a 30-day challenge of rejection. Ajit, now the time is less. Thank you so much, but I want to not allow you to go without one request. What do you think is future? And हम लोग यहाँ पर सब लोग दोनों तरह की फनल पे काम करते हैं, ऑफलाइन भी जैसे आप रेफरल पे और ऑनलाइन भी हम क्रिएट कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक इज फ्यूचर फॉर फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस? और टेक्निकली तो सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत फ्यूचर है. एंड और कोई स्पेशल मैसेज यू वांट टू गिव इट टू ऑल आवर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एनॉर्मस स्कोप. मेरी समझ से बहुत बड़ा स्कोप है. बहुत जल्दी हम लोग, मतलब हम फील कर रहे हैं कि हमारे पास कैपेसिटी के लिए लगातार बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हम एकदम से लगातार एम्प्लॉय नहीं बढ़ा सकते. बट जिस तरीके से कभी कभी तेजी से लीड्स आती हैं कि सभी बिजी हैं बहुत ज्यादा. माय वाइफ अंजू इज हैंडलिंग अ टीम ऑलरेडी. और जो पूछा आपने कि फिजिकल वाला है डिजिटल है, मुझे लगता है फिजिकल इज द वे. तो डिजिटल इनेबलर का काम करने वाला है. डिजिटल से आप चीजों को फास्ट कर सकते हैं, केवाईसी फास्ट कर सकते हैं, यू कैन हैव द सीआरएम विथ यू. लोगों को सीरियसनेस दिखना चाहिए कि आप अगर वो एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं एंड देन ठीक है मैं बताता हूँ, एंड देन आप चलते हैं किसी और से पूछने और वो शाम तक नहीं कल बताता है, देन परसों आप बताते हैं. यू रियली थिंक द कस्टमर विल बी इंटरेस्टेड इन डीलिंग विथ यू? तो डिजिटली इक्विप्ड करना है. जैसे जैसे आपको थोड़ी सक्सेस मिलती जाए, आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाते जाइए. इंश्योरेंस में एग्जैक्टली कौन से सीआरएम से मैं नहीं जानता, बट डेफिनेटली है, मुझे पता है. Yes. दूसरी बात की पीपल वांट टू सी यू, पीपल वांट टू मीट यू, क्योंकि आप मिलके एक अपॉर्चुनिटी है कि आप शोकेस कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को, सीरियसनेस को, बॉडी लैंग्वेज को. तो दोनों चलेगा, कोएग्जिस्ट करेगा. एज फार एज आवर बिजनेस इज कंसर्न्ड, एटलीस्ट 100 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको मैंने देखा नहीं है कभी. एंड सम ऑफ देम जो है उनका इन्वेस्टमेंट 50 लाख 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा है, जिनको कभी मिला नहीं हो. मैं पहचान नहीं सकता, मेरे आंखों के सामने आएंगे तो दोनों ही चीजें चलने वाली हैं. लेकिन यस, देयर इज नो डिलाइट देन मीटिंग समवन. अपने होराइजन को एक्सपेंड करना पड़ेगा. आप जो भी प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं उसके स्पेशलिस्ट तो हो ही जाइए.
साथ साथ में और इनेबलिंग थिंग्स क्या हो सकती हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है, ताकि क्लाइंट को लगे कि ही इज एक्चुअली अ वेल विशर. गो टू अ क्लाइंट एज अ वेल विशर एंड जेन्युइनली सो, सिर्फ जुबान से और मुस्कुरा के बोलने के लिए नहीं. बार बार एक बात बोल रहा हूँ, अगर इफ you can prove to the client कि आप actually उसके well wisher हैं, then you have the client with you. Thank you so much, Ajit. Everybody say thank you, Ajit, and say more power to you, Ajit. Please type in the chat box. Let's say thank you to our guest. He is very busy and managing almost 500 crore of hard-earned money of people. And यहाँ पर इतना Thank you. समय हमारे लिए बताया. And I'm sure, Ajit, our people would like to meet you soon again. But maybe we'll take your time in advance. Thank you so much for coming on. Thank you all. It was a pleasure. I'm signing off. Thank you, Yogi, for inviting me. Have a nice time. Thank you. Thank you, Ajit. Thank you so much.